A very good morning, class. Welcome to the lecture 23 of Unit 5. And this unit is all about biomass energy. And this will cover the principle and working of the biomass energy. I mean, the conversion and working and the principle limitations, advantages, as well as the disadvantages. So, let us have a look towards this lecture through a PPT. And this will be like this. So till now we have covered what is biomass energy, what are its sources, what are its types. Now we will cover what are the different energy conversion techniques, and the energy conversion techniques are basically of two types, that is direct as well as indirect. So the biomass conversion technology. We'll study about the biomass conversion technology. We'll start with the biomass conversion technology. The first one is wet process and the second one is dry process. So if we divide the biomass conversion technology, it is further subdivided into two types. That is the wet process and the dry process. So coming towards the wet process and the dry process, we'll discuss one by one what are the wet process and what are the dry process. So let us have a look towards the wet process. अब हम wet process के बारे में बात करेंगे. तो wet process में जो सबसे पहला मेथडोलॉजी है या फिनोमिना है या प्रोसेस है वो है एनएरोबिक डाइजेशन. ओके, तो व्हाट इज एनएरोबिक डाइजेशन? पहले तो आप ये जान लेने की कोशिश कीजिए कि एनएरोबिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है. एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट मींस एनारोबिक डाइजेशन का मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि डाइजेशन in the absence of oxygen by some bacteria. Okay, so biogas produced by the bacterial decomposition of wet sewage sludge, animal dung or great plants in the absence of oxygen. देखो अभी मैंने बोला था ना कि बायोगैस का फॉर्मेशन होगा in the absence of oxygen. So anaerobic digestion, the biogas is produced by the bacterial decomposition of wet sewage sludge, animal dung, or plants in the absence of the oxygen. In the absence of the oxygen, feed stock like wood, saving straw and refuse may be used, but digestion takes much longer. ठीक है. The natural decay process anaerobic decomposition can be speeded up by using a thermally insulated airtight tank with a stirrer unit and heating system. तो anaerobic digestion में क्या करते हैं हम? सीवेज स्लज, एनिमल डंक और प्लांट्स का ऑक्सीजन के एब्सेंस में बायोगैस का प्रोड्यूस करते हैं उसके बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से. ठीक है. वेट प्रोसेस में पहला क्या है? एनएरोबिक डाइजेशन. So biogas is produced by the bacterial decomposition of wet sewage sludge, animal dung or great plants in the absence of oxygen. तो पहला प्रिंसिपल, पहली ऑब्जेक्टिव जो एनारोबिक डाइजेशन की ये होती है कि जो भी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा स्लज का, डंग का या प्लांट्स का, वो होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. ओके. फीड स्टॉक लाइक वुड, शेविंग स्ट्रॉ एंड रिफ्यूज में बी यूज्ड, बट डाइजेशन टेक्स मच लॉन्गर. ओके. हम और भी जैसे वुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एनिमल डंक और सीवेज स्लज का डाइजेशन थोड़ा तेजी से होता है. ओके. बट टाइम टेकिंग नहीं होता है. बट वुड का और स्ट्रॉ का जो है वो डाइजेशन इट टेक्स मच लॉन्गर. ओके. So the natural decay process, anaerobic decomposition, can be speeded up by using a thermally insulated airtight tank with a stereo unit and heating system.
सो जो नेचुरल डीके प्रोसेस है जैसे एनारोबिक डाइजेशन है, उसको अगर हमें स्पीड करना हो, अगर उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ थर्मली इंसुलेटेड एयर टाइट टैंक विद अ स्टीरर यूनिट एंड हीटिंग सिस्टम। तो ये है आपका एनारोबिक डाइजेशन वेट प्रोसेस में। दूसरा है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? इथेनॉल का मतलब हुआ इथाइल अल्कोहल is produced by the fermentation of sugar solution by natural yeast. After about 30 hours fermentation, the brew or the beer contains 6 to 10% alcohol and this can be removed by distillation. ठीक है, तो fermentation process में क्या करते हैं, जो इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल is produced by the fermentation of sugar solution by natural yeast. After about 30 hours of fermentation, the brew or the beer contains only 6 to 10% alcohol and this can be removed by the distillation. तो हम इसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं बाय दी फर्मेंटेशन, शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं बाय नेचुरल ईस्ट। तो हम इसमें जो बैक्टीरिया आपका यूज करते हैं वो क्या होता है, नेचुरल ईस्ट। और 30 घंटे के फर्मेंटेशन के बाद बियर का फॉर्मेशन होता है जो 6 से 10% अल्कोहल कंटेन करता है और उसको हम बाद में डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिमूव करते हैं। ठीक है, अब है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन इज द हीट developed by the wet biomass conversion process. It involves pressure cooking animal waste or plant cellulose slurry with an alkaline catalyst in the presence of carbon monoxide at a temperature between 250 degrees centigrade and 400 degrees centigrade. तो केमिकल रिडक्शन में क्या करते हैं, केमिकल रिडक्शन is the heat developed by the wet biomass conversion process. It involves pressure cooking animal waste or plant cellulose slurry with an alkaline catalyst in the presence of carbon monoxide at a temperature between 250 degrees centigrade and 400 degrees centigrade. तो वेट प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा, तीन चीजें हमने देखी वेट प्रोसेस में। वेट प्रोसेस में क्या है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन है जिसमें हम वेट स्लीवेज स्लज, एनिमल डंक और प्लांट्स का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज करके बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम वुड का भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसका डिकम्पोजिशन काफी एक लंबा समय लेगा। ठीक है, और एनारोबिक डिकम्पोजिशन को अगर हम स्पीड करना हो तो उसको हम थर्मली इंसुलेटेड एयर टाइट टैंक के थ्रू करते हैं विद अ स्टीरर एंड हीटिंग सिस्टम। फर्मेंटेशन में क्या होता है, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय नेचुरल ईस्ट। आफ्टर 30 hours fermentation, the brew or the beer contains 6 to 10% alcohol and this can be removed by the distillation. ठीक है, केमिकल रिडक्शन में क्या करते हैं, केमिकल रिडक्शन इज द heat developed by the wet biomass conversion process. It involves pressure cooking animal waste or plant cellulose slurry with an alkaline catalyst in the presence of carbon monoxide at temperature between 250 degrees centigrade and 400 degrees centigrade. तो ये तो हो गया वेट प्रोसेस जिसमें वेट स्लरी को हम कन्वर्ट करते हैं। अब आओ ड्राई प्रोसेस में। तो ड्राई प्रोसेस में सबसे पहला क्या है, पैरोलिसिस। पैरोलिसिस का मतलब क्या हुआ, ये हीटिंग से मतलब होता है इसका। अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी रिच फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग ड्राई वुड मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड वुड चिप्स। द मटेरियल is fed into a reactor vessel and then pulverized or shredded form and heated in the absence of air. इसको हम क्या करते हैं, एक वेसल में उसको पल्वराइज करते हैं मतलब हीट करते हैं in the absence of air. As the temperature rises, the cellulose and lignin break down to simpler substance which are driven off, leaving a char residue behind. तो ये है आपका पैरोलिसिस का प्रोसेस जिसमें हम वुड और स्ट्रॉ मैटर को क्या किया जाता है, एक बंद वेसल में एब्सेंस ऑफ एयर में उसको हीट किया जाता है और आपका जो लेगनिंग और सेल्यूलोज है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है। फाइनली आपका जो रेजिड्यू है चार
वो आपका बच रहा है, दैट इज योर बायोगैस, दैट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द बायोगैस। दूसरा है उसी में लिक्विफिकेशन, और तीसरा रहेगा गैसिफिकेशन। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन और गैसिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? लिक्विफिकेशन में liquid yields are maximized by rapid heating of the feedstock to comparatively low temperature. The vapors are condensed from the gas stream and these separate in two-phase liquor. पहला है aqueous phase. Aqueous phase contains a soup of water, a soluble organic matter like acetic acid, acetone, methanol. दूसरा है non-aqueous phase, consists of oil and tars. फिर है gasification. Pyrolysis of wet biomass produce fuel gas and very little liquid. An alternative technique for maximizing gas yield is to blow small quantities of air or oxygen into the reactor vessel and to increase the temperature to over 1000 degree centigrade. Fuel gases from air blow gasifier has a low calorific value and may contain up to 40% inert nitrogen gas. Overall yield of 80 to 85% can be expected. देखो इसको समझने की कोशिश करो। ये है आपका ड्राई प्रोसेस। पैरोलिसिस में क्या किया, एक क्लोज्ड वेसल में हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट कर दिया, राइट, और हमें फिर रेजिड्यू मिल गया। लिक्विफिकेशन में हम क्या करते हैं, liquid yields are maximized by rapid heating of the feedstock to comparatively low temperature. The vapors are condensed from the gas stream and these separate into a two-phase liquor. दो फेस लिकर में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, दे आर सेपरेटेड, और उसमें दो फेज में है, पहला एक्वस फेज और दूसरा है नॉन एक्वस फेज। Aqueous phase contains a soap of water, soluble organic matter like acetic acid, acetone, methanol, और non-aqueous phase में है consist of oil and tars. Okay. अब बात करते हैं गैसिफिकेशन की। So pyrolysis of wet biomass produce fuel gas and very little liquid. So हमने क्या किया, जो पैरोलिसिस कर रहे हैं बायोमास, बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं पैरोलिसिस के थ्रू by using the, I'm very sorry, gasification में क्या है, pyrolysis of wet biomass produce fuel gas and very little liquid. तो जो पैरोलिसिस होता है उससे हमें फ्यूल गैस मिलता है और बहुत कम मात्रा में लिक्विड मिलता है. So an alternative technique for maximizing gas yield is to blow small quantities of air or oxygen into the reactor vessel and to increase the temperature to over 1000 degrees centigrade. Okay, fuel gas from air blow the gasifier has a low calorific value and may contain up to 40% inert nitrogen gas. Overall yield of 80 to 85% can be expected. ठीक है, तो ये दो टेक्निक होती है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस. तो दो टेक्निक है इसके कन्वर्जन की, जिसमें एक पहला है वेट प्रोसेस और दूसरा है ड्राई प्रोसेस. तो हमने जो वेट प्रोसेस में देखा उसमें तीन प्रोसेस था. क्या क्या था? पहला था एनारोबिक डाइजेशन, दूसरा था फर्मेंटेशन और तीसरा था केमिकल रिडक्शन. और ड्राई प्रोसेस में था क्या था? पैरोलिसिस था, लिक्विफैक्शन था और तीसरा गैसिफिकेशन था. अब हम बात करेंगे बायोगैस जनरेशन के बारे में. ठीक है, अब बात करेंगे बायोगैस जनरेशन के बारे में. So biogas is a mixture of 55 to 65% of मीथेन. तो जो बायोगैस है वो दो गैस का मिक्सचर है, जिसमें 55 से 65% आपका मीथेन है, दैट इज CH4, एंड 30 to 40% इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द रेस्ट बीइंग द इम्प्योरिटीज. और जो बचे हुए हैं वो क्या है? इम्प्योरिटीज है. कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द decomposition of animal, plant and human waste. It is clean but slow burning gas and usually has a calorific value between 5000 to 5500 kilocalorie per kg. A few other materials through which biogas can be generated are algae, crop residue, garbage kitchen waste, paper waste, seawood, human waste, waste from sugarcane refinery, water, etc. Okay,
सो बायोगैस क्या है? बायोगैस एक गैस है विच इज अ मिक्सचर ऑफ 55 to 65% of methane, that is CH4, and 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, that is CO2, और जो बचे हुए हैं वो क्या है? इम्प्योरिटीज है। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दी, कैसे इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं? फॉर दी फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। मतलब तीन चीजों का डिकम्पोजिशन करते हैं, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। इट इज क्लियर बट स्लो बर्निंग गैस। ये तो क्लियर गैस तो है, क्लीन गैस भी है, लेकिन आपका स्लो बर्निंग गैस है। एंड यूजुअली हैज अ कैलोरीफिक वैल्यू बिटवीन 5000 to 5500 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, a few other materials through which biogas can be generated are, कुछ अदर मटेरियल कौन कौन से हैं वो तो हमने बता दिया कि एनिमल, प्लांट और ह्यूमन वेस्ट से हमने बना लिया, काउ डंग वगैरह यूज करके। लेकिन कुछ अदर मटेरियल भी है जिसमें आता है एलगी, क्रॉप का रेजिड्यू, गार्बेज, किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट, सीवुड, ह्यूमन वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम शुगर केन रिफाइनरी, वाटर हैकनेस, ईटीसी। ओके, तो ये था आपका जो है बायोगैस जनरेशन के बारे में, कि बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं, और बायोगैस का कन्वर्जन किस दो प्रोसेस से होता है, बायोगैस कौन से दो गैसेस, कौन से तीन सब्सटेंसेस से मिलके बना है, आई मीन दो गैसेस हैं और कुछ पार्ट इम्प्योरिटीज है इसका। उसके बाद ये किस तरह की गैस है, क्लीन गैस है बट स्लो बर्निंग गैस है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 5000 से 5500 किलो कैलोरी पर केजी है, एस्टिमेट की गई है। अब बात करते हैं एनारोबिक डाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनारोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन तो हमने देख लिया, अब हमने देखेंगे एनारोबिक डाइजेशन। ओके, एनारोबिक डाइजेशन क्या है? बायोगैस technology is concerned to microorganisms. Okay, these are living creatures which are microscopic in size and are invisible to unaided eye. These are, there are different types of microorganisms. These are called bacteria, fungi, virus, etc. सो बायोगैस टेक्नोलॉजी जो है वो किस पे कंसर्न होती है आपकी? वो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म पे कंसर्न। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? दीज आर द लिविंग क्रिएचर्स विच आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर इनविजिबल टू unaided eye. ओके, ये क्या है? ये these are basically living creatures and are very microscopic in size. तो microscopic in size है तो इसका मतलब क्या हुआ? This will be invisible to the unaided eye. Okay, now these are different types of microorganisms. These are called bacteria, fungi, virus, etc. The anaerobic digestion consists broadly of three phases. तीन phases, तीन process है इसका: enzymatic hydrolysis, acid formatic और methane formation. Okay, so enzymatic hydrolysis में क्या है? Where the fats, proteins, carbohydrates contained in cellulose biomass are broken down into simple compound. तो उसमें क्या करते हैं? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं। एसिड फॉर्मेटिक में क्या करते हैं? वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म of flocculative and anaerobic group collectively called as acid former, hydrolysis and ferment are broken to simple compound into acid and volatile solid. तो acid formatic में हम क्या करते हैं? Where the microorganism of facultative and anaerobic group collectively called as acid former, hydrolysis and ferment are broken to simple compound into acid and volatile solid. और मीथेन फॉर्मेशन में क्या होता है? Where organic acid are formed above are then converted into methane. जो organic acid तो क्या है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये है कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है, सिंपल कंपाउंड में तोड़ा जाता है, फिर एसिड का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक एसिड का, फिर उस ऑर्गेनिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय द बैक्टीरिया व्हिच आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक. These bacteria are called methane fermentators. Okay, so this is the anaerobic digestion. This is anaerobic digestion. Anaerobic digestion का मतलब क्या हुआ? Digestion by the done by the bacteria
फंगी एंड वायरस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और तीन इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, पहला है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा है एसिड फॉर्मेटिक, और तीसरा है मीथेन फॉर्मेशन। ये तो हो गया एनारोबिक डाइजेशन। अब हमको क्या बात करनी है, अब हमको बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोगैस डाइजेशन। तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, पीएच एंड टेम्परेचर, टोटल सॉलिड, लोडिंग रेट्स, शीडिंग, यूनिफॉर्म फीडिंग, diameter to depth ratio, carbon nitrogen ratio, nutrients, mixing और stirring and retention time। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपका, हाउ बायोमास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। अभी हम इस लेक्चर में ये देख रहे हैं, हमारा कंसर्न है कि बायोमास का कन्वर्जन। ठीक है, तो हमने देखा दो प्रोसेस से, मैंने आपको बताया वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस, और जो बेसिकली एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस से होता है। ठीक है, मैंने आपको एरोबिक के बारे में बताया, एनारोबिक के बारे में भी बताया, कैसे मीथेन का फॉर्मेशन होता है। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि हाउ बायोमास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, कि बायोमास को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे बायोमास मिल गया उसको एनर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। Biomass power is simply carbon neutral electricity produced from renewable organic waste product। Okay, पहले तो जानो बायोमास पावर है क्या। इज अ सिंपली कार्बन neutral electricity produced from renewable organic waste product which could have been openly burned, dumped in the landfills or just left in the forest to cause the fire। Okay, तो हम क्या करते हैं, these are simply carbon neutral electricity produced from renewable organic waste product। okay, तो हम किससे प्रोडक्शन होता है, renewable organic waste product से, which could have been openly burned, जिसको हम बर्न कर सकते थे, डंप कर सकते थे या लैंडफिल में छोड़ सकते थे, in the forest to cause fire। Energy from the sun is transferred and stored in the plants in the form of chemical energy। okay, when the plants are cut or die, wood chips, straw, and other plant matter is delivered to biogas plant। When biomass is burned, it releases energy in the form of heat। So पहला step क्या है, energy from the sun is transferred and stored in the plants in the form of chemical energy। When the plants are cut or die, wood chips, straw, and other, देखो ये सारा मैटर करेगा आपका तीन चार चीजों पे, प्लांट पे, wood chips पे, स्ट्रॉ पे, प्लांट मैटर पे। ठीक है, इसी को हमको बायोगैस में कन्वर्ट करना है, डिलीवर्ड टू बायोगैस प्लांट। व्हेन बायोमास इज बर्न, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। द बायोमास प्लांट burn wood or other forms of waste to generate the steam। The energy from the steam is directed via pipes to run the turbine। अब इसको क्या करते हैं, हम बायोमास को हीट में कन्वर्ट करते हैं, उससे स्टीम को जनरेट करते हैं, फिर हम उसे टरबाइन को चलाने की कोशिश करते हैं। The steam rises up to the turbine that produces electricity or generate the heat or homes for homes and industry। तो क्या किया हमने, प्लांट्स को, प्लांट मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को जलाया, उससे हीट प्रोड्यूस किया, हीट से स्टीम प्रोड्यूस किया, स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट किए, और टरबाइन रोटेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस किए, जो कि विच इज यूजफुल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्री। ओके, in most countries, biomass plants have been built in the countryside to provide electricity to the local population। There are waste to energy plants that burn trash to produce electricity and power millions of homes। Energy can also be used by burning the scrap wood or wood chips that are left over after trees have been trimmed। Okay, so बहुत सारी कंट्रीज में बायोमास प्लांट हैव बीन बिल्ट इन द कंट्री साइड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द लोकल पॉपुलेशन। इसका मतलब यह है कि काफी प्रैक्टिस में लाया गया है इसको। देयर आर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दैट हैव बीन बर्न ट्रैश to produce electricity and power millions of homes। Energy can also be used by burning the scrap wood or wood chips that are left over after the trees have been trimmed। So this is the बायोमास कार्बन साइकिल। तो ये है आपका साइकिल। ठीक है,
जिसमें स्टेप बाय स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड, रेन एंड सोलर एनर्जी। पहला प्रोसेस हुआ कन्वर्टेड इनटू प्लांट मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस, सबको पता है। दूसरा स्टेप है, तीसरा है प्लांट मटेरियल टर्न इनटू बायोमास, वुड पैलेट्स। चौथा है वहां से कन्वर्ट किया, वुड पैलेट्स आर बर्न रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजिंग हीट एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ द बायोमास कार्बन साइकिल, राइट। ये है आपका सोलर एनर्जी से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, एनिमल हस्बेंड्री, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, कार्बन क्रॉप हार्वेस्टिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, ह्यूमन कंजप्शन, राइट। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक वेस्ट में, देन एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन से आपका बायोगैस सप्लाई टू नेचुरल गैस पाइपलाइन, okay, then electricity and thermal generation, it is also then converted into bio fertilizer। और जब इलेक्ट्रिसिटी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, then there will be the release of H2O and CO2, so this is how the biomass is converted to useful energy। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें देख ली। बेसिक हमने देखा कि हाउ it is converted into useful energy, so we'll talk about different types of the biogas plant in the next lecture, so thank you so much for today's lecture। We'll discuss about biogas plant in the next lecture। Thank you।